Okay, the hope the screen is visible and my voice is also audible to everyone. So yesterday we stuck at this problem because this is a continuously a solution giving differential equations. So such questions will be tackled by using something different things as I explained yesterday. That is, we have to use that is a real part and imaginary part of the things. So as we did, that is a particular integral is 1 upon d square plus 4x into sine square of x. We did this formula, and after simplification of the using the formula of when x into v, we are stuck here. That is because again and again we are getting the same things. So such a questions will be tackled by using some concept of mathematics here, because so I'm just taking here clearly. So as yesterday we saw that, so I'm taking from that step so that you could understood from the starting point. As we saw that is pi or y is equal to 1 upon d square plus 4 into x into 1 minus cos of x cos of 2x, the whole thing divided by 2. As we apply yesterday, now what next? So as we have we have to multiply this part, so y is equal to 1 by 2 as it is. This part will becomes 1 by d square plus 4 into x, then minus 1 by 2 1 by d square plus 4 into x cos of 2x, x cos of 2x. So after simplification of this part, we are getting this result. Now we have to simplify this part one by one or step by step. So this is a very simple thing. So one by one we have to simplify. If you are aware about these things, whenever x is there, we have to take this 4 as a common factor so that we can make a bracket of 1 plus d square here. So I'm just writing here y is equal to 1 by 2 into 1 by 4, और separately solve कर लेते हैं because separately it will be good. So we have to solve, we are solving this part 1 by 2 into 1 by d square plus 4 into x, which is equal. So we are taking this 4 as a common factor, so this is 1 by 2 है तो 4 we can write 8 into 1 by, this will becomes 1 plus d square by 4, 1 plus d square by 4 into x as it is, into x as it is, because we taken 4 as a com outside from this, so it will becomes 8, या फिर वो इधर 4 रखो इधर 1 by 2 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा. इसको लेके एक्सपांशन ऊपर दे दोगे पहले, तो इट विल बिकम्स 1 by 8 एज इट इज. अब एक्सपांशन कहाँ तक देना है ये आपको पता होना चाहिए कि इधर x है, मतलब वी कैन मूव अहेड विद डायरेक्टली, दैट इज
this part, the expansion of this will becomes 1 minus फिर डी स्क्वायर बाय 4, उससे आगे नहीं जा सकते, एक्सपांशन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज यही ज़्यादा हो गया हमारे लिए, बिकॉज 1 माइनस फिर प्लस डी रेस टू 4 बाय 4 स्क्वायर करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड टाइम ही जीरो आ रहा है, तो फर्दर आगे जाने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, into x. So I'm just writing here directly x into 1, that is x. 2 times derivative it is becomes 0. So we can write as only x by 8. So this is the first part result we are getting. First part result हमको मिल रहा है. You can see that x by 8 वो हमको मिल रहा था तभी भी. But यहाँ से हम लोग को solution नहीं मिल पा रहा था properly. So x by 8 we getting same as it is. Now coming to the next part. This part. We have to solve this part. So 1 by 2 and it is minus 1 by 2, if there then we have to put that is a minus 1 by 2 यहाँ लास्ट में रिजल्ट में माइनस लिख देंगे, अभी फिलहाल प्लस लिख के सॉल्व करते हैं जो भी रिजल्ट आएगा, और इफ यू विश यू कैन गो अहेड विद माइनस साइन. सो minus 1 by 2 into 1 by d square plus 4 into x cos of 2x. So अब ये प्रॉब्लम हम लोग इस तरह क्यों सॉल्व कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन. सिर्फ यही टाइप में ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बिकॉज ऊपर आपने देखा है कंटिन्यूअस हमको ये पार्ट मिल रहा है. नाउ इफ आई एम गोइंग टू इवेल्युएट दिस पार्ट, if I'm going to evaluate this part in terms of exponential, then I will get, or I'm writing here, that is cos of 2x, which is equal to e raised to 2ix plus e raised to minus 2ix divided by 2 in terms of exponential. Because this is a circular function, we can convert in terms of exponential. So this is e raised to 2ix. So just we have to look of this part. Whenever cosine function is there, we have to write as a real part. अगर यहाँ पे sin 2x होता तो we should write as a imaginary part. मतलब लिखने के लिए एक रूल है कि if cosine we have to write r dot p, means real part of. So I'm just writing here, you can just observe this part. So minus 1 by 2 as it is, real part of 1 by d square, 1 by d square plus 4 x into e raised to 2ix. Because if you remember the formula, e raised to I theta, which is equal to cos of theta plus I sin of theta, if you remember. तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, cos 2x चाहिए. अगर e raised to 2ix है मेरा, तो e raised to 2ix मेरा क्या होगा, e raised to 2ix which is equal to cos of 2x plus I sin of 2x से लिखेंगे इसको. तो हमको सिर्फ रियल पार्ट का जरूरत है यहाँ पे, बिकॉज कोसाइन फंक्शन इज देयर. So cos 2x is my real part. Just try to understand this part. That's why this part is called, instead of cos 2x, we should write e raised to 2x. अगर यहाँ पे cos 3x होता तो we should write e raised to 3ix. So this things make this thing clear. Why we are converting this things in terms of exponential? Because there is a reason. Because if I'm going to simplify this part again and again, then I'm not going to get the result or appropriate solution. So that's why we are applying, or we are converting that cos 2x in terms of exponential. And these are the very simple and simple methods. There is nothing more we have to do any like कोई बड़ा formula utilize करना है, कुछ नहीं. The basic formula we have to utilize. If cosine function is given, then we have to write as a real part of that cosine in terms of exponential.
लाइक cos 2x है तो e raised to 2ix, बिकॉज उसको स्प्लिट करोगे देन अगेन यू कैन गेट अ रियल पार्ट ऑफ दैट पार्ट एज cos 2x. So that's why we mention here. Now here we can see that x into e raised to 2ix और e raised to ax into x. अब यहाँ पे तो हमको एक चीज क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल इंटू अल्जीब्रिक है, तो एक्सपोनेंशियल का रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो this part which is equal to minus 1 by 2 real part of e raised to 2ix into 1 upon डी स्क्वायर प्लस 4 है, तो डी के जगह पे इसको मैं आगे लिख चुका हूं, तो इधर लिखूंगा डी डी प्लस 2i raised to power 2 times and plus 4 as it is into x. Now we can solve this part as a very simply way. We have to just expand this bracket, so you can I hope all of you are aware about this thing. D square plus 4id and 2i का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन i स्क्वायर विल बी -4. so that -4 and this +4 will get cancel. तो मैं ये स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूँ. just try to understand. this is -1 by 2 as it is real part of, if you want you can write full statement, real part of e raised to 2ix into 1 upon d square plus 4id or 4di into x, because -4 plus 4 get cancel. अब फंक्शन है आपके पास अल्जीब्रिक के लिए आप क्या वर्क करते हो, ऊपर आपने किया है कि 4 आप कॉमन निकाले थे, ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाले थे, यहाँ से भी 4id आप कॉमन निकालने की कोशिश करोगे. सो वी शुड टेक एज अ 4id एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम दिस टर्म. सो -1 by 2 real part of e raised to 2ix into 1 upon 4id I am taking as a common factor, or 4di as a common factor. So what term will be remain here? 1 upon 4id कॉमन निकल गया, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4id होएगा, तो वो d और वो स्क्वायर गेट कैंसल. सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड d बाय 4i, और ये टर्म आपको मिलेगा एट द एंड n2x. अगर चेक करना है तो 4id से फिर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4id into 1 that is 4id, 4id into this 4i get cancelled, d into d square. So again you will getting the same term, so there is no change. ऊपर लेके इसको एक्सपांशन दे दो, -1 by 2 as it is real part of e raised to 2ix into 1 upon 4i d. एक्सपांशन ऊपर लोगे -1 करके एक्सपांशन देना है, तो उससे अच्छा डायरेक्टली ये स्टेप में एक्सपांशन दूंगा मैं. तो 1 माइनस एक्स ही है खाली, तो सिर्फ एक्सपांशन किस तरह दोगे आपको पता है, सिर्फ एक ही टर्म आएगा d बाय 4i. प्लस लिखना है तो लिख दो प्लस डी स्क्वायर बाय 4i, और उसका भी स्क्वायर रहेगा माइनस सो ऑन इंटू एक्स. लेकिन यहाँ पे देखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 2 टाइम्स विल बी 0, तो ये लिखो नहीं लिखो इट्स योर चॉइस. -1 by 2 real part of e raised to 2ix into 1 by 4id. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, सो -1 by 4i. रेस्ट पार्ट पूरा 0 मिलेगा आपको, तो वी कैन राइट एज इट इज 0 दिस पार्ट इंटू एक्स सॉरी बोल रहा हूँ, x -1 by 4i केप्ट एज इट इज. अब इसको क्या करना है, 1 by d है यहाँ पे, 1 by 4i केप्ट एज इट इज. 1 by d है मतलब क्या करना है, आगे वाले टर्म का इंटीग्रेशन.
So we have to perform minus 1 by 2 as it is real part of e raised to 2ix into 1 by 4I as it is. Integration of x is x square by 2 and integration of constant term will becomes x only. तो x by 4i ये हमको मिलेगा x by 4i. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कर देते हैं इस पार्ट को सिंप्लीफिकेशन. So after simplification of this part, minus 1 by 2 as it is real part of, तो e raised to 2x को भी मैं रियल पार्ट लिखता हूँ, तो लिखता हूँ रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ cos of 2x प्लस I sin of 2x. एवलर्स फॉर्मूला है जो ऊपर मैंने e raised to I थीटा आपको दिखाया था लिख के, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो व्हाट वी आर गेटिंग, यू कैन सी दैट x square by 8i, x square by 8i. Now you can see that minus x upon 4i is 16, but I into I will becomes I square, and I square is minus 1. So minus minus this we can write as a plus x by 16, plus x by 16. So this is a result we are getting. Now we have to take only real part, and we have to see to it that clearly, that is in the result we should write proper वे में रिजल्ट होना चाहिए हमारा. तो उसी बेसिस पे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ रियल पार्ट का रिक्वायरमेंट है. We have to decide so that it will becomes very easy. So minus 1 by 2 as it is. मल्टीप्लीकेशन अगर इसको करूंगा मैं, और आई कैन से दैट इज अ रियल पार्ट ऑफ, मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर cos of 2x upon 8i. Then we can multiply again here, x into cos 2x upon 16. Then we have to multiply with this part, so you will getting x square into sine of 2x अपॉन 8, बिकॉज यहाँ से तो आई आई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना जरूरी है. नो नेक्स्ट आई, तो प्लस आई एक्स साइन ऑफ 2x बाय 16, ये हमको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलता है. अब यहाँ पे इमेजिनरी कौन सा है, रियल कौन सा है, वो चीज़ हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे. माइनस 1 by 2 से भी मतलब देखो ये इमेजिनरी है. क्यों इमेजिनरी है, इधर आई है, लेकिन अगर इस आई को हमको निकालना है तो आई से अगर मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड करोगे तो वो जो मल्टीप्लाई होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जस्ट शो करता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इधर आई से मल्टीप्लाई किया और नीचे आई से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला आई रह जाएगा, नीचे वाला आई, आई इंटू आई विल बिकम्स आई स्क्वायर, वो माइनस 1 मतलब माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन ये आई यहाँ पे आपको मिलेगा एज इट इज. तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी अगर आई आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो पार्ट इमेजिनरी में ही चले जाएगा. हाँ, ये पार्ट आपका इमेजिनरी में नहीं जाएगा बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली रियल. सो इस पार्ट को मैं लिखता हूँ रियल पार्ट में, बिकॉज हम लोग सिर्फ रियल पार्ट ले सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट नहीं ले सकते हैं. सो माइनस क्यों इमेजिनरी पार्ट नहीं ले सकते, वो मैंने रीजन पहले ही बताया, बिकॉज द क्वेश्चन वाज cos 2x. So make clear, if cosine function is there, we have to take only real part. If sine function will be there, we have to take imaginary parts. So minus 1 by 2 into this part. So minus x cos 2x by 32, this part. अब आगे आते हैं, ये भी आपका अगर अच्छी तरह से देखोगे तो रियल है, लेकिन ये इमेजिनरी है बिकॉज आई यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये पार्ट भी नहीं लोगे आप, सिर्फ इसी पार्ट को लोगे. तो प्लस और माइनस, तो माइनस एज इट इज x इंटू कॉस 2x
x into sorry x square into sine of 2x बाय 16। सिर्फ यही आपका रियल पार्ट के रिजल्ट रहेंगे। बाकी जो दोनों टर्म्स जो हैं वो ये पार्ट और ये पार्ट इमेजिनरी हैं, तो इनको हम नहीं ले सकते हैं। एट द एंड वी शुड राइट द रिजल्ट। लास्ट में रिजल्ट लिखना है, तो y इज इक्वल टू वी शुड राइट एज अ c1 cos 2x। अगर आपको याद होगा या ऊपर हमने लिखा ही है, तो यू कैन जस्ट सी टू इट दैट क्लियरली। e raised to 0x c1 cos 2x plus c2 sin 2x. According to that basis, we should define the result. Now see. So we should write e raised to 0x. लिखना है तो लिखो c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x. This is my complementary function. Now we should write as we can say that पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। तो पहला पर्टिकुलर इंटीग्रल x बाय 8 था, अगर देखोगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हमने किया था x बाय 8। so we should write x by as it is 8 as it is, so x by 8 और उसके बाद ये पार्ट है तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन और x by 32 cos of x cos of 2x minus x square by 16 sine of 2x, and this is our final result. So the method is a very clear and simple. If the function is not going to solve in algebraic into v or x into v part, we have to utilize this formula, because very easy formula is there. What we did here, you can just see to it that clearly, अगर अच्छी तरह से देखोगे आप, वहाँ पे भी रिजल्ट हुआ था, आपको मिलता माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 और समथिंग आगे सिंप्लीफाई करने के बाद। लेकिन ये जो कोसाइन वाला पार्ट है, ये आपको कंटिन्यूअसली आपको ये डोमिनेट कर करके कंटिन्यूअसली होते हुए आपके पास जाता और आपको एट द एंड रिजल्ट नहीं मिलता। इसके लिए उस स्टेप को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इन केस इफ सच ए क्वेश्चन अराइजेस, देन यू हैव टू यूज दिस मेथड। किस तरह मेथड सॉल्व किया गया, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ से ही मैंने लिया है ये पार्ट को। यू कैन जस्ट सी टू इट दैट दिस इज वाज आवर रिजल्ट। उसको ही सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पहले अल्जीब्रिक पार्ट को सेपरेट किया है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया x बाय 8। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमको पता है इसका रिजल्ट हमको नहीं मिलने वाला है आगे स्टेप में, क्योंकि हमने ऊपर मेहनत किया है लेकिन नहीं हमको रिजल्ट मिल रहा है। सो कोसाइन फंक्शन है, इसलिए हमने उसको रियल पार्ट से रिप्रेजेंट किया है। अगर साइन फंक्शन होता तो वी शुड रिप्रेजेंट एज इमेजिनरी पार्ट। So this was our result. एक क्वेश्चन है, मैं anyway first anyone having any doubts regarding this so please ask, otherwise एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग ट्राई करना। Okay. This is one numerical I'm giving. Just a second. शायद हमने सॉल्व किया है वो न्यूमेरिकल, तो जस्ट लेट मी वेरीफाई whether we solved or not. नहीं किया है। So we should move ahead with this numerical, and it is my request you have to use this method, because very easy method. This is question solve d square minus 1 into y is equal to x square into sine of 3x। ये इसी तरह मेथड से सॉल्व करोगे आप, जो अभी हमने सॉल्व किया है।
इमेजिनरी पार्ट लोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू पीपल, दैट इज आगे जाके स्टक नहीं होगे। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, घर पे ट्राई करना सब लोग। सो उसके बाद अगर डाउट अराइज होते हैं, कुछ होते हैं, तो कल हमारे पास लेक्चर है, दैट टाइम वी कैन डेफिनेटली डिस्कस। बट आई एक्सपेक्ट दैट इज फ्रॉम स्टूडेंट साइड that if students are not capable or not able to solve, then they should must ask, because it is not easy if to do like a school kind के मैं आपका हर एक का नोटबुक बैठ के चेक करूँ, not possible. So I request all the students, if you are facing any kind of doubts regarding mathematics of my subject or my topic or any दूसरे भी टॉपिक रहेंगे तो ऐसा कोई वो नहीं है, बट इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ doubts, queries regarding this, so at least it is your duty, it is your moral responsibility, you should ask during the lectures time. We are having a lot of lecture in this semester, so no worries about that कि फटाफट भागना है, करना है सेम वन जैसा, no way. We have uh, plenty of time, so we have to utilize that time. So whenever you are facing, because this is the biggest chapter we are learning, linear differential equation with constant coefficients. More methods are remaining, so I'm coming to the next method so that you should understood. So hope I'm expecting this question must be solved by the students community or from your side. So coming to the next part or next type, so just a minute. Just I'm giving the hint that is you should go ahead with the sin 3x, तो e raised to 3ix आपको मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखो, इमेज लेकिन आप लिखोगे आई डॉट एम और इमेजिनरी डायरेक्ट लिखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, जैसे मैंने सॉल्व किया सिमिलर वे से आपको सॉल्व करना है। ई रेस टू 3ix, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करोगे तो डी प्लस थ्री आई आप ऐड करोगे, यहाँ पे डी प्लस थ्री आई और -1, तो डी प्लस थ्री आई का होल स्क्वायर करोगे, उसके बाद जो भी आएगा रिजल्ट उसको लेके फिर कांस्टेंट वाला टर्म कॉमन लेके फिर एक्स स्क्वायर है, अल्जेब्रिक फंक्शन है, तो रेस टू -1 करके एक्सपांशन दो, सिंप्लीफाई करो, डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। प्रॉपर रिजल्ट आपको 101% मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, so I'm just moving ahead with the new topic of our syllabus. No, new topic, not sorry. Next topic of this chapter, when, or next type, when particular integral when particular integral when particular integral does not belong, so just try to understand this method. When particular integral does not belong partially or completely to any of the above method, to any of the प्रीवियस लिखता हूं मैं, प्रीवियस टाइप भी लिख सकता हूँ, प्रीवियस मेथड भी लिख सकते हैं।
तो अगर जैसे अभी प्रीवियस इतने सारे आपने देखा है, उनसे किसी से बिलोंग नहीं करता है, देन हाउ टू टैकल सच ए काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. So as already I mentioned these things clearly, type of exponential, type of trigonometric, type of algebraic, type of exponential into any functions, type of algebraic into any function. अभी तक इतने मेथड आपने देखा है. अब इसमें से कोई भी मेथड अगर नहीं मिलता है, then what should we apply or what should we have to do here? So you should be careful about these things कि कैसे क्या क्या करना है हमको. So I'm just writing here two things because already we aware about these things. एक चीज से आप अवेयर होंगे, दैट इज अ प्रोसीजर. आई एम राइटिंग दैट इज 1/d into x, दैट इज इक्वल टू, ऑलरेडी यू पीपल अवेयर क्या हम लोग करते हैं. 1/d into x means we are doing that is a integration with respect to x. And second one is 1/d minus a or plus a. 1/d minus a, not plus a, into capital X. तो ये फॉर्मूला आपके लिए नया है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स. e raised to ax integral e raised to minus ax into x into dx. मतलब कुछ किया नहीं है, यही फॉर्मूला है, खाली इधर d था तो x इंटू डी एक्स, लेकिन d माइनस ए आ गया है तो हमने क्या किया है, खाली एडजस्टमेंट, लिटिल बिट एडजस्टमेंट. ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया. अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे को ई रेस टू 0 1 मिलेगा और मेरे को फिर से यही टर्म्स आके मिल जाएंगे. So you can just see to it that clearly, that is this is the result we are getting, x into dx. So सिर्फ e raised to x into e raised to minus x किया गया है, बाकी नथिंग, कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे, कुछ अलग वर्कआउट नहीं किया गया है. So just see to it that we have to apply these things. So one by one we are going to solve one or two numericals on the basis of this part. So definitely you will understood कि किस तरह सॉल्व किया गया है, कैसे इसका रिजल्ट आ जा रहा है, अदरवाइज क्लियरेंस नहीं आएगा. So I'm coming to one numerical first question or problem. Problems. The first problem or question is solve d square plus a square into y into cosec of ax into cosec of ax. Now how to solve this question, you can just see to it that solution of this part. So d square a square है, so we can say that is this is imaginary part we are getting. So I'm just writing directly cf of d square plus a square equal to 0. Therefore we are getting y is equal to e raised to 0x आएगा, वो छोड़ दो, c1 cos of 2ax plus c2 sin of ax. Hope if I'm not wrong. D square plus a square का रूट से ही आएंगे, that is it is clear, d minus ai and d plus ai, so we can getting that is ai and minus ai. So we return this part because real part is 0 here. Now we have to tackle. देखो अभी इससे पहले वाले मेथड जितने पढ़े, कहीं पे भी कोस कॉसेक था, कॉट था, या कुछ भी ऐसे टर्म्स नहीं थे.
यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉसेक मिल रहा है, मतलब ऊपर के आप सभी मेथड देखोगे, एक्सपोनेंशियल था, ट्रिग्नोमेट्रिक था, साइन कोसाइन था। अगर फॉर एग्जांपल किसी के माइंड में आता है कि इसको कन्वर्ट कर दो, if you are going to the conversion and anything, I'm not thinking that is you are going capable to solve, because it will again and again complex. Like cosec is what, उस किसका opposite होता है आपको पता है, that is sec is opposite of cos and cosec is opposite of your sine, so we can write 1 by sine. अब 1 by sine आ जाएगा तो उसको कैसे ऊपर लाओगे, साइन रेस टू -1x तो लिख नहीं सकते हो, बिकॉज इनवर्स फंक्शन आपने कहीं सीखा नहीं है। फिर आपके माइंड में आएगा रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन करोगे न्यूमरेटर में आपको, अगर इनकेस अगर माइंड में आता है, बट फिर रैशनलाइजेशन में ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा कि साइन एक्स है 1 माइनस और 1 प्लस, या साइन एक्स प्लस 1, या ऐसा कोई टर्म्स होगा, तब हम जाके रैशनलाइजेशन यहाँ पे कर सकते थे। या अगर होगा कि इक्वल है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स करके फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो आपके लिए बार बार सरदर्द बना रहेगा। बार बार न्यूमरेटर जो भी आएगा उसको सिंप्लीफाई कर ले जाओगे, लेकिन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स आते जाएंगे वो आपके लिए सर दर्द बनते जाएगा, और वो और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते चले जाएगा। उसका वो टर्म मिलेगा, उसका अपोजिट टर्म मिलते जाएगा, साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा, कॉस साइन, ऐसे ही आपका खेल चलते जाएगा। एंड देन you will be stuck, and I don't think that is later on you are able to or capable to solve, because हमने मेथड ही साइन कोसाइन का देखा है, वो भी न्यूमरेटर पार्ट के साथ, तो डिनोमिनेटर में अगर आएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए एडजस्ट करना। इसके लिए ये एक मेथड डिफाइन हुआ है। मेथड क्या डिफाइन हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इंटीग्रेशन का, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग मेथड है नहीं। अब कॉसेक एक्स है, मैं प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। पी आई का लिखने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए, व्हाट हाउ टू राइट पी आई। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज अ पी आई इज इक्वल टू 1 by d square plus a square into cosec of ax, ठीक है, इंटू कॉसेक ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली लिखते जा रहा हूँ 1 by d square plus a square, 1 by d square plus a square. It would be a difficult task we are getting here. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक टर्म, इसको मैं पार्शियली सबसे पहले स्प्लिट करना चाहूँगा। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता होगा, आपने स्कूल लेवल पे या जब भी यहाँ पे भी सीखा होगा। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को यहीं पे लिख के इसको पार्शियली एक्सप्लेन करूँगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड 1 by d square plus a square is equal to 1 upon d minus ai and d plus ai। अगर सिंप्लीफाई मैं करूँ इस पार्ट को, देन आई विल गेटिंग अगेन द सेम टर्म। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा पार्शियली, a अपॉन d माइनस आई ए आई एंड प्लस b अपॉन d प्लस ए आई, a अपॉन d माइनस ए आई प्लस b अपॉन d प्लस ए आई। पार्शियल फ्रैक्शंस का रूल है, आपने स्कूल लेवल में सीखा हो, स्कूल लेवल छोड़ दो, 12th साइंस में आप सीखते हो, 12th में इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इफ यू रिमेंबर आई थिंक। सो a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा वो तो सेम है, तो कैंसिल हो जाते हैं, तो वो छोड़ दो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूंगा 1 इज इक्वल टू, उसके अलावा भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सो a इंटू डी प्लस ए आई प्लस b इंटू डी माइनस ए आई, डिनोमिनेटर में दोनों आएगा, वो टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं।
अब आप अच्छी तरह से अगर देखोगे तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। जैसे a अपॉन डी माइनस ए है, b को जीरो करना है मतलब इस ब्रैकेट को जीरो करना जरूरी होता है। तो अगर d इक्वल टू ए ले लोगे, ए आई अगर ले लूँ मैं, d इक्वल टू ए आई, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा मतलब b मेरा जीरो हो गया। ए आई क्या होएगा, टू ए आई। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये नहीं लिखते आप तो भी चलता, लेकिन अब लिखे हो, प्रॉब्लम है तो समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो सपोज अगर मैं लिखूँ d इज इक्वल टू ए आई, तो ये पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा, बिकॉज ए फाइंड आउट करना है तो बी आपको जीरो करना ही पड़ेगा। तो दिस इज टू ए आई, तो ए इज इक्वल टू वन बाय टू ए आई, सो ए इज इक्वल टू वन बाय टू ए आई। Similarly, you can see that if I am taking d is equal to minus of ai, माइनस ए आई लूंगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ए जीरो हो जाएगा तो बी बाय डिफॉल्ट मिलेगा, तो ये माइनस टू ए आई हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू, वी कैन से दैट इज माइनस वन बाय टू ए आई। तो एट द एंड हमको ये पार्ट मिल रहा है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड दिस पार्ट, बिकॉज ये इसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इतना वर्क करके डायरेक्टली आप लिख रहे हो तो भी चलेगा, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग इंस्टेड ऑफ वन बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं ये पार्ट लिखूंगा अभी इंस्टेड ऑफ दिस। तो व्हाट आई एम गेटिंग दैट इज आफ्टर दिस पार्ट, ए का वैल्यू वन बाय टू ए है, तो वन अपॉन टू ए आई इंटू डी माइनस ए आई माइनस वन अपॉन टू ए आई इंटू डी प्लस ए आई। जस्ट सेकेंड, उससे बजाय डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, सो ये हमको ए और बी मिल गया। अभी इसके जगह पे मैं डायरेक्टली ये लिखता हूँ, तो y इज इक्वल टू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड दिस पार्ट, y इज इक्वल टू वन बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेरा ये पार्ट है। ए का वैल्यू वन बाय टू है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। वन बाय टू ए आई इंटू डी माइनस ए आई, फिर b का है मेरा वन अपॉन माइनस वन बाय टू है, तो माइनस वन बाय टू ए आई इंटू डी प्लस ए आई, ये पार्ट हो गया। और इनटू मेरा क्या करना है मुझे, कॉसेक ऑफ ए एक्स एस। तो ये पार्ट मेरा हो गया यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट। सो y इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग वन बाय टू ए आई इज अ कॉमन फैक्टर हियर, सो वन बाय टू ए आई मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया यहाँ पे। ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो, वन अपॉन डी माइनस ए आई माइनस वन अपॉन डी प्लस ए आई, कॉसेक ऑफ ए एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वन बाय टू ए आई उससे मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वन बाय टू ए आई सामने मल्टीप्लाई। तो आई एम जस्ट टेकिंग वन बाय वन नाउ, वन अपॉन डी माइनस ए आई इंटू कॉसेक ऑफ ए एक्स है या कॉसेक है, ए एक्स है सॉरी, इंटू कॉसेक ऑफ ए एक्स। क्वेश्चन में कॉसेक ए एक्स ही लिखा हूँ ना, हाँ ठीक है, कॉसेक ऑफ ए एक्स विच इज इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला आपने सीखा है वही फॉर्मूला यूटिलाइज करना है यहाँ पे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रहे आप लोग को। क्या फॉर्मूला सीखा है, वन बाय डी माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटीग्रल ई रेस टू माइनस ए एक्स। तो यहाँ पे डी माइनस ए के जगह पे क्या है वो चीज़ ध्यान में रहे आपको अच्छी तरह से। तो उसका अपोजिट पहले माइनस ए आई है, तो इधर अपोजिट में प्लस लिखोगे ई रेस टू ए आई एक्स इंटीग्रल, अंदर उसका अपोजिट ई रेस टू माइनस ए आई एक्स, इधर पॉजिटिव इधर माइनस है ना, तो इधर प्लस लिखा है इधर माइनस, इनटू क्या था एक्स, तो एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है कॉसेक ए एक्स है, कॉसेक ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इंटीग्रेशन वगैरह कुछ निकालते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है। सो वन बाय वन, पहला वन अपॉन डी माइनस ए आई जैसे लिया है वैसे ही वन अपॉन डी प्लस ए आई का भी सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रहे आप लोगों को। वन वन अपॉन डी प्लस ए आई रहेगा अगर, तो यहाँ पे माइनस ए आई एक्स आएगा, यहाँ पे प्लस ए आई एक्स रहेगा, तभी वो इक्वल होगा प्रॉपरली। तो फिलहाल हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो ई रेस टू ए आई एक्स इंटीग्रल, अच्छा ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया, ई रेस टू आई थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। माइनस है तो बीच में साइन माइनस आ जाता है, तो आई एम जस्ट राइटिंग फ्रंट दिस पार्ट, कॉसेक ऑफ ए एक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स माइनस आई इंटू साइन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रॉपर पार्ट को। एकदम इजी इंटीग्रेशन है इस पार्ट का, कोई बहुत बड़ा नहीं है। कॉसेक क्या होता है, वन बाय साइन होता है, ये तो सभी को पता है। तो कॉसेक मतलब क्या हो गया, ई रेस टू ए आई एक्स, या ये स्टेप पे मैं लिखता हूँ तो क्या है डायरेक्टली हमारा हो जाएगा, जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। सो वन बाय cos x is 1 by sin of ax cos x, और बाकी इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, तो e रेस टू ए आई एक्स इंटीग्रल अंदर मल्टीप्लाई cos बाय sin इज cot, तो cot ऑफ ए एक्स हो गया, sin आई एक्स sin ए एक्स गेट कैंसल, सो माइनस क्या हो जाएगा ये पार्ट आपका i, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटू डी एक्स। अब इसको है इंटीग्रेशन करने की बारी। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एनीवन, या कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है मेरे को, वेरी इजी इंटीग्रेशन। सर लॉग ऑफ साइन एक्स। वेरी गुड, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे ए एक्स है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ई रेस टू ए आई एक्स, ये इंटीग्रेशन आपका खत्म होता है, इसको लिखूंगा लॉग ऑफ साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स है इसलिए यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे माइनस आई है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट वी हैव टू डू और वी हैव टू अप्लाई, सो दिस पार्ट इज माइनस ऑफ आई एक्स एज इट इज। तो ये इंटीग्रेशन हमको किसका मिला, वन बाई डी माइनस ए आई इंटू कॉस ए एक्स। होप ये चीज़ आपको सभी को क्लियर होगी, बिकॉज कॉस अपॉन साइन है। आपको अगर ये मेथड याद होगा, इफ यू रिमेंबर दिस मेथड, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स को किस तरह लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते थे, इफ यू रिमेंबर। तो कॉस बाय साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होएगा, कॉस ए एक्स, तो वो ऊपर प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली लॉग ऑफ साइन ए एक्स लिख दिया है यहाँ पे, लॉग ऑफ साइन ए एक्स। अभी एक्स के साथ क्या है, ए है, तो वी शुड राइट ए, एंड दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट, सो वी शुड राइट केप्ट एज इट इज। सो होप द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन डी माइनस ए आई इंटू कॉसेक ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू दिस। अभी ये पार्ट आपको मिल गया है, तो मतलब सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली वन अपॉन डी प्लस ए आई इंटू कॉसेक ऑफ ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, खाली इधर बाहर माइनस आएगा, मतलब खाली ये फॉर्मेट लिख रहा हूँ मैं, ये आएगा ई रेस टू माइनस ए आई एक्स हो जाएगा, इसका अपोजिट लिखने का पहले, फिर इंटीग्रल ई रेस टू ए आई एक्स, क्योंकि नहीं तो वन होगा नहीं, और इंटू कॉसेक ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। बाकी प्रोसीजर सेम है, बाकी प्रोसीजर में कुछ नहीं आएगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू माइनस ए आई एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ ए एक्स बाय ए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आई एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए प्लस आई एक्स, रेस्ट ऑल टर्म एज इट इज। ये दोनों टर्म आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन में, और ये आपका पी आई आपको मिल गया, खाली फ्रंट में वन बाई टू आई से दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे। सो होप दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ आई एम कमिंग टू द फाइनल सॉल्यूशन, और फाइनल पी आई पहले लिख दूँ, पी आई
और y is equal to 1/2ai, ब्रैकेट ले लो, you should write this part e raised to aix into log of sine of ax by a माइनस आई एक्स, ये फर्स्ट टर्म था आपका। सेकेंड, बीच में साइन माइनस था, इफ यू रिमेंबर यू कैन सी दैट द साइन इज माइनस बिटवीन द टू टर्म्स, माइनस है तो माइनस केप्ट एज इट इज, यू शुड राइट -1 और ई रेज टू, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, माइनस ए आई एक्स इंटू log of sine of ax अपॉन a प्लस आई एक्स। ये आपका पूरा पी आई है। अब लास्ट में खाली सी एफ इसको कंबाइन करोगे, देन यू विल गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट। सो होप द थिंग्स आर क्लियर व्हाट वी अप्लाइड। इसके अलावा कुछ और मेथड हम लोग के पास था नहीं, कुछ अप्लाई कर नहीं सकते थे हम लोग इसके अलावा कोई भी मेथड, बिकॉज हमारा राइट हैंड साइड कॉसेक मिल गया था। ऐसे ही टैन भी मिल सकता है, और भी सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। देन डेफिनेटली योर डाउट मस्ट बी क्लियर रिगार्डिंग के और क्या क्या टाइप आ सकता है। सी एफ तो वेरी इजी था बिकॉज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। पी आई की बात थी, पी आई थोड़ा अलग मेथड था, बट वो भी कोई बहुत हार्ड नहीं है। फर्स्ट वी डिड अ पार्शियल फ्रैक्शन ही है, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमने सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व किया। अब सवाल आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन क्यों, क्वेश्चन अराइज होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए कि इधर कॉसेक है, कॉसेक होने की वजह से हमको कहीं पे भी कोई और मेथड हमने सीखा ही नहीं है। कॉसेक होने की वजह से हमने कहीं पे भी कोई मेथड सीखा नहीं है कि डी स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर रख दो या कुछ भी। अब दूसरा आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ये फॉर्मेट कन्वर्ट करना जरूरी है, डी माइनस ए नहीं होगा तो आगे इंटीग्रेशन वाला कानून नहीं लगा पाओगे आप, या रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे। तो वो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने पहले डी माइनस ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। अब कन्वर्ट करने के बाद डी माइनस ए आए और डी प्लस ए आए, दोनों टर्म मल्टीप्लाई है। अब दोनों टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड अप्लाई करना होगा। So hope these things are clear कि why we applied the partial fraction method. Now anyone having any doubts regarding this, so please ask. If no doubts, I'm proceeding with the attendance part because already it is 11 a.m. So anyone having any doubts regarding, so you can on your mic, you can speak up. If no doubts, you can comment in a chat box or you can speak अगर कोई भी doubt है किसी को तो। Yesterday I taken a that is a mentoring session, उसमें कोई ऐसा है जो absent रह चुका था। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था रिगार्डिंग दैट्स आई एम एक्सेप्टेड। इसके अलावा कोई ऐसा है कि रोल नंबर 108 टू 129 में से कोई भी मिसिंग है फ्रॉम माय बैच, या आपका पता है दैट इज यू ऑलरेडी मैसेज मी, आपने मेरे को मैसेज किया है कशिश शाह करके। इसके अलावा कोई और है, I will take your mentoring, don't worry. If possible, I will message you. Uh, if possible, I will take after 4:30 today. So don't worry about that. अगर आपको possible होगा, then let me know after 4:30. Anyone other than, so that I'm expecting sir inverse. Just a minute. Okay, so I'm expecting no doubts from the students, so I just taken the attendance. So now you can leave for the next lecture. Thank you so much. See you tomorrow. Take care. Bye bye.